ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੁਖ ਉਚਰੇ ਸਾਸਤਰ ਖਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਖਰੂ ਸੁਨੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ ਜੀਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੀਨਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਹੈ, ਯੱਗ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ। ਕੀਰਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ जुड़ना। कलयुग में कीर्तन प्रधान। तो करते पुरख की कीर्ति आप कीर्तन राही सरवण कर रहे थे। इस वक्त जो विचार बने ने वो मैं थोड़े समक्ष भेंट करने की कोशिश करा। समुचे जगत की कोशिश तो बड़ी है कि पहुंचिए परमात्मा तक, गमन करिए ईश्वर तक, लेकिन पहुंच हो नहीं रही। जमीन के उत्ते इस वक्त कोई 4 अरब के करीब मनुख ने, पर उंगलियां ते वो बंदे गिने जा सकते हैं जिन्हां दी पहुंच परमात्मा तक है। बल्कि कुछ तो सियाणे कह रहे हैं कि ये जिहड़ी सदी है, ये जिहड़ी 20वीं सदी लंघ रही है, इसमें चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे बिजनेसमैन पैदा किए ने, चंगे सियासतदान भी पैदा किए ने, चंगे भगत नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। यह जिहड़ी सदी है, पिछलियां सदियां विच चंगे ऋषि पैदा होए, संत पैदा होए, अवतार पैदा होए, आलम पैदा होए, पर ये जिहड़ी सदी है, इस सदी ने चंगे इंजीनियर पैदा किए ने, चंगे डॉक्टर पैदा किए ने, चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे राजनीतिक पैदा किए ने, और इसी तरीके नाल चंगे व्यापारी पैदा किए ने। चंगे ब्रह्म ज्ञानी नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। कुछ वातावरण माहौल ही ऐसा बन गया है कि मनुख सियासतदान बनना चाहता है, मनुख डॉक्टर बनना चाहता है, मनुख व्यापारी बनना चाहता है, मनुख राजनीतिक बनना चाहता है, मनुख दिलों भगत नहीं बनना चाहता। बगौर कदी मुताला करो। तो इस वास्ते कहने ने कि 4 अरब की इस मखलूक दे 2 हत्थां दीआं उंगलियां कई उन्हां बंदियां नूं गिण सकदे हां जिन्हां दी पहुंच गुरु तक होवे, जिन्हां दी पहुंच अकाल पुरख तक है। बाकी रस्ते च ही रह गए, नहीं पहुंचे।
ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਬਾਣੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਲੇਖ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਇੱਕ ਹੈ ਸੋ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੋ ਦਰ। ਉਹ ਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋ। ਸੋ ਦਰ ਸੋ ਪੁਰਖ। ਸੋ ਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਲਬਨ 3 ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਦੀ ਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਦਰ, ਉਸ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ, ਦਰਾਂ ਭੀਤਰ ਦਰ ਕਵਨ ਰਹੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸ ਦਰ ਤੱਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਔਖਿਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਦਰ ਵਸੇ ਕਵਨ ਦਰ ਕਹੀਏ। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू जिथे रहना है वो दर किथे है, वो दर केड़ा है? गुरु नानक दा ये सवालिया नुकता, प्रश्न, इनू प्रश्नमई बचन कहते ने। जिन्हां बचनां विच, जिन्हां शब्दां विच कोई सवाल होवे, कोई प्रश्न होवे। जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कमन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी बन गया। उदासी तो मुराद उपराम हो गया, संसार तो उपराम हो गया।
और मैं इतनी अर्ज कर दिया है, यही संसार सब कुछ है, तो संसार तो उच्चा उठण की सुरत नहीं पैदा होती। यही जीवन सब कुछ है, तो परम जीवन प्राप्ति की मनुख के अंदर इच्छा नहीं पैदा होती। संसार के रस ही सब कुछ ने, तो नाम रस की चर्चा बेमैनी फिजूल है, क्योंकि जगत के रस ही सब कुछ ने। महाराज कहते जिस घर नूं जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, मैं उपराम हो गया, मैनू कोई आके दसे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे, ओ घर मैनू कोई दसे। जिसनू लभदा लभदा मैं उपराम हो गया, थक गया, तलाश कर रहा, खोज कर रहा। तो इस चक्कर विच ना पैना कि परमात्मा का जिहड़ा घर है कोई इट्टां ते पत्थरां दा बनिया है, लकड़ का बनिया है, सोने का बनिया है, चांदी का बनिया है, ऐसी गल नहीं। क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति ते है नहीं, वो तो एक शक्ति है। व्यक्ति एक देसी हो सकता है, सर्वदेसी नहीं। जैसे मैं इत्थे मौजूद हाँ, दूजे शहर विच नहीं, दूजी थां ते नहीं। मनुख व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। तुसी इत्थे बैठे हो, घर विच नहीं हो, जे घर विच होवोगे तो इत्थे नहीं हो। व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है परमात्मा ते व्यक्ति है ही नहीं, वो तो एक शक्ति और व्यापक है, सर्वदेशी है, व्यापक है। इस वास्ते वो व्यक्ति नहीं, वो आकार नहीं, वो एक निराकार है। आकार तो रहत है, फिर उसका घर किथे है? जिहड़ा सर्व व्यापक है, जिहड़ा आकार तो रहत है, जिहड़ा रंग रूप तो रहत है, जिहड़ा जन्म ते मरण तो रहत है, उहदा घर किथे है? किवें उस तक पहुंचीए? तो गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ गल नूं खोलिया है। आप कहते ने कि 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रखाया। मैं गल छेड़ बैठा, पर जिहड़े कुछ अभ्यास करते होंगे शायद उन्हां दे कुछ पल्ले पै। अभ्यास तो मुराद गुरु घर विच अभ्यास खड़ा है जप ते जाप ते। 10वें ग्रंथ की पहली बाणी है जाप। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी है जप। जप बाणी का नाम है, ते जप शुरू होता है आद सच जुगाद सच। ऊपर जिहड़ा एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक है ना, ये मूल मंत्र है, ये मंगलाचरण है। इसका जपजी साहब नाल कोई तल्लुक नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं कि जिथे किधरे नवा कोई राग शुरू होता है, नवी बाणी शुरू होती, एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक ये मूल मंत्र मौजूद है। ये मंगलाचरण के रूप में मौजूद है। बाणियां के बकायदा नाम ने। गुरु ग्रंथ साहब जितनियां बाणियां ने सब के नाम ने। किसी का नाम सुखमनी, किसी को संस्कृति श्लोक, किसी को चौबोले कहते हैं, किसी को गाथा कहते हैं, किसी को फुने छंद कहते हैं। कोई श्लोक वारां तो वधिक दी बाणी है, कोई वारां ने वख-वख। इसे तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी पहली बाणी है वो है जप। तो गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांतिक जिहड़ा नुकता है वो है जप, वो है जाप। जप का मतलब है किसी एक अखर नूं बार बार दोहराना, चलाई जाना, चलाई जाना। हुण जप किवें करना है, जप किसदा करना है, जप किस वक्त करना है, जप कौन कर सकता है, सारी व्याख्या जपजी साहब चलती है। किसदा जप करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, ਇਹਦਾ जप करना। ये श्लोक है। जप किवें करिए, जप कौन कर सकता है? बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है जपजी साहब के अंदर, और मनुख नूं पहुंचाउण की कोशिश की है गुरु नानक ने सच खंड तक। परमात्मा की है सच। लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, जिथे तुसी बैठे हो इसनूं कहंदे ने सत संग। उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सच की संगत करन आए ने, सत की संगत करन आए ने। सत कौन है? परमात्मा। सत कौन है? अकाल पुरख। सत कौन है? ईश्वर। उहदी संगत करन आया।
दिन भर काम धंधियां की संगत की, धियां पुत्रां की संगत की, धन संपदा की संगत की, यारां दोस्तां की संगत की, हो सकदा विकारां की संगत की, पर एक घंटा अद्धा घंटा सत की संगत कर ले। खुशकिस्मत है वह मनुख जिहदा सत दे नाल संग हो जाए, ते जिहदा सत दे नाल संग हो जाता है, असी पता उसनूं की कहने हैं, सतसंगी। ये ते सतसंगी, इहदा सत नाल संग हो गया। पहचान की होगी सतसंगी दी, उहदा वेखना सच होगा, उहदा बोलना सच होगा, उहदा सुनना सच होगा, उहदा सोचना सच होगा, रोम रोम विचों सच निकलेगा। सतसंगी, सच नाल संगत हो गई, सत नाल संग बन गए। सच एक परम शक्ति है, सच एक परम नूर है, सच एक परम आनंद है, सच एक परम मस्ती है, सच एक परम खेड़ा है। मनुख दे कोल ये खेड़ा दिखाई नहीं देता, मनुख दे कोल ये मस्ती दिखाई नहीं देती, मनुख दे कोल ये आनंद ते प्रकाश दिखाई नहीं देता। इस वास्ते गुरुद्वारे बैठा होया भी मनुख कई दफा गुस्ताखी माफ झूठ संगी ते हुंदा है, सतसंगी नहीं। गुरुद्वारे आ जाना होर गल है, सतसंगी हो जाना होर गल है। वरना गुरुद्वारे बैठे हुए भी कई झूठ संगी होंदे ने, सतसंगी नहीं। सतसंगी होना कोई मामूली गल ना समझना, बच्चियां दी खेल ना समझना। सतसंगी होना, सत नाल संग स्थापन कर लेना, सत नाल रिश्ता जोड़ लेना, सत दे नाल संबंध जोड़ लेना, सत नूं अपना संबंधी बना लेना, बहुत वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। सत नाल संबंध जुड़ सके, सत नाल रिश्ता जुड़ सके, उस वास्ते जो तौर तरीका गुरमत ने दसिया जप जाप। ते तुसी आखोगे जप किवें करना है? मैं जिहड़ी गल तुहाडे सामने रखांगा वो ना मेरा निजी ख्याल है ते ना ही मेरा निजी अनुभव है। गुरबाणी नूं पढ़िया है, व्याकरण दृष्टि अनुसार जो अर्थ बोधां दा थोड़ा जिहा पता चलिया है वो मैं तुहाडे सामने रखदा पिया। जिहड़ी गल आखांगा उसकी गुरबाणी तशरीह कर देगी, ते फिर मनना न मनना वो तुहाडे फैसले ते है। सुनाना मेरा फर्ज और सुना के मनना मेरा फर्ज, सुन के मनना थोड़ा फर्ज। जिन्नी सुन के मनिया और तिन बलहारे जा। साहब कहते असी सदके जाते हैं उन्होंने तो, कुर्बान जाते हैं जिन्हों ने सुन के मन ले। पहले सुनना है, इतनी मैं अर्ज करना, मनना बाद च, पहले सुनना है। चार पौड़ियां सुनिए दियां पहले ने, जिन्हों सुनिया ही नहीं उन्होंने मनना की। पहले तो सुनना है ता पता चलेगा। तो जिन्नी सुन के मनिया हों तिन बलहारे जा, जिन्हें सुन के मन लिया। तो जब मन लिया तो उन्हें की करना है? संबंध जोड़ना है। तो संबंध जोड़े किस तरह जोड़ेगा? जप नाल, जाप नाल। जाप का की तरीका है? साडे देश विच जिहड़े अभ्यासी मनुख ने वो इस ढंग के दावे करते हैं भी एक जल्दी हुई दीवे की लो सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो, जाप करो। कोई कहता ध्यान इत्थे जोड़ो। सनातन मत ते साडे देश के कुछ गुरमतीए अखवाण वाले भी ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक की तस्वीर सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो। इत्थे आकार हो गए, तस्वीर ते आकार है, वजूद है। ते सहब कहने निराकार, उहदा कोई वजूद ही नहीं, उहदी कोई तस्वीर नहीं, उहदा कोई रंग रूप नहीं, वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। जे तस्वीर दे ही ध्यान जोड़ना है तो ये ते मर्यादा हिंदुस्तान विच पहले भी मौजूद सी। सनातन मत की गुरु नानक नूं मानण दी की लोड़ सी? सतगुरुदेव जी महाराज ने जो नारा लाया निराकार, कोई आकार नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई शक्ल नहीं। चक्र चेन अर बरम जात अर पात नहीं चे, साफ कह देता। वो मनुख की मूर्ति भी नहीं है। सोखम मानस रूप कहा है, सिद्ध समाध साध कर हारे क्यों न देखन पाए। वो मनुख भी नहीं है, वो नर ते नारी भी नहीं है।
क्योंकि मनुख मन लीए तो फिर मनना पेगा ਉਹਦਾ जन्म भी होया है, मनुख मन लीए तो यह भी मनना पेगा ਉਹਦੇ माँ बाप भी हैं, मनुख मन लीए तो मनना पेगा ਉਹਦੀ मौत भी होगी, क्योंकि जिहड़ा जम्मिया है मरेगा, फिर रब का भी जनाजा निकलेगा, फिर परमात्मा की भी लाश होगी, फिर उन्होंने भी जलाना पेगा, ਉਹਦੀ भी कबर बनानी पेगी। नहीं, परमात्मा व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है। तो जब वो शक्ति है तो कोई तस्वीर बना के वो ध्यान जोड़ना, मैं समझदा है परमात्मा की गुरु की बहुत वड्डी तोहीन है। गुरु भी आकार नहीं, एक निराकार हस्ती है, निराकार नहीं निराकार नाल जोड़ना है। और गुरु की है शब्द, धुन, आवाज। तमाम अभ्यासी मनुख अभ्यास करके जब अभ्यास दियां शिखरतां नूं उन्होंने छोया तो उन्होंने यह कहा कि परमात्मा एक प्रकाश है, परमात्मा एक धुन है, अनाहद नाद है। हुण गुरबाणी कोल तुसीं पुछो भी जे असीं नाम जपीए तो की होवेगा, साहब कहन दो गल्लां होणगीआं। नाम जपण वाले मनुख के अंदर, नाम अभ्यासी मनुख के अंदर दो घटनावां घटणगीआं। केड़ियां? नाम जपत कोट सूर उजारा, दिन से भरम अंधेरा। एक तो उसके अंदर प्रकाश होगा, चानना। दूसरा, चेत अचेत मूड़ मन मेरे बाजे अनहद बाजा। ਉਹਦੇ अंदर एक अनहद बाजा वजे, अनहद बाणी नाद वजाया। सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाए अचरज समाद। साहिब कहन अनहद नाद वज पैंदा है। एक ऐसा नाद जिसनों प्रगट करने वास्ते कोई रंग रूप ते नहीं, अंदर वज पैंदा। इस वास्ते भारत के प्राचीन कुछ ऋषि मुनिया ने कह दिता परमात्मा शब्द है, धुन है, परमात्मा नूर है, प्रकाश है, चानना है। और आप सुन के हैरान होवोगे, एक विचार नाल जगत के तमाम रहबरी पुरुष सहमत ने, एकाग्रता बख्शनी। वो की संसार की उत्पत्ति किवें हुई है? मुहम्मद साहब का कहना है कि खुदा तो एक कुन नाम की धुन हुई तो जगत बन गया। एकाग्रता बख्शनी, कुन एक धुन हुई, जगत बन गया। लोगोस नाम की एक धुन हुई, संसार बन गया। ऐसा बाइबल का संदेश है। ओंकार की धुन हुई ते संसार बन गया, ऐसा स्वामी महावीर कहते हैं। जिहड़ा ओंकार शब्द है बड़ा पुराना है, इनू जैनियां ने अपनाया है, इनू सनातनियां ने भी अपनाया है। और इतिहास की पड़चोल करिए तो ओंकार शब्द बहुत पुराना नहीं तो घट तो घट 4000 साल से पुराना है। ये सबूत मौजूद है। हिंदुस्तान दे नर्मदा के कंढे दे उत्ते एक तीर्थ मौजूद है बहुत वड्डा, उस तीर्थ का नाम है ओंकार जी। जिहड़ा मंदिर बनया है वो पहाड़ को तराश के बनाया गया है, पत्थरों पहाड़ से, तो उस मंदिर का नाम है ओंकार। रेलवे स्टेशन का नाम भी ओंकार जी है। और हर पूर्णमाशी को हिंदू जगत उत्थे पहुंचता है तीर्थ यात्रा वास्ते। शिवरात्रि वाले दिन गालबन कोई 15-20 लाख मनुख पहुंच जाते। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अस्थान भी इस तीर्थ के उत्ते है। और इस तीर्थ के उत्ते गुरु नानक ने एक बाणी उच्चारण की थी, केड़ी? दक्षिणी ओंकार, जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दर्ज दक्षिणी ओंकार। ये तीर्थ दक्षिण देश है हिंदुस्तान के। ते दूसरा रामकली दक्षिणी, जिन्होंने कभी थोड़ी जी संगीत की पड़चोल की है ना, तो हिंदुस्तान के दो तरह का संगीत बड़ा प्रचलित है, पूर्वी संगीत ते दक्षिणी। बड़ी गल है ना, पूर्व का संगीत ते दक्षिण का संगीत। लिखिया होंदा साहब, गौड़ी पूर्वी महला पंजवां। गौड़ी गाओ पर पूरब की गौड़ी, दक्षिण की गौड़ी नहीं। दक्षिण विच गौड़ी होर गाई जाती। रामकली दक्षिणी महला पहला, भई ये रामकली दक्षिण की रामकली, पूरब की रामकली नहीं, दक्षिण की रामकली। गौड़ी गावनी है दक्षिण की नहीं, पूरब की गौड़ी। बड़ा ख्याल रखे मेरे पातशाह ने।
ਵੀ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਇੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਕਸ਼ਣੀ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ। ਤੋ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓੰਕਾਰ, ਔਰ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਮਕਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓੰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਭਾਲੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲ। ਕੀ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਦਿਆ ਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਖਤੀ ਦਿੱਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਜਿਸ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਓੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਭਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮ ਦੀ ਧੁਨ ਹੋਈ, ਓਮ ਤੇ ਜਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਕੁਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋਈ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਗੋਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋਈ, ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਲਮੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਐਸਾ ਈਸਾ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਧੁਨ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਧਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਅਸਥੂਲ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਅਨੰਤ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਧੁਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਦ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ? ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਭੈਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾ। ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਸਨਾ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਰਹੀ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੇ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਵਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
दिल अपने आप धड़क रहा है, असी नहीं धड़का रहे। नब्ज अपने आप चल रही है, असी नहीं चला रहे। श्वास अपने आप चल रहे हैं, असी नहीं चला रहे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं कह रहा, शब्द अपने आप चल रहे हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुत जन्म ना। कलगीधर पातशाह कहते मेरे सिख दी सुरत इतनी उच्ची चली जावे कि जाप सो अजप्पा जाते। रसना नाल जाप ना करे फिर भी जाप जारी है। इतना उच्चा जाए मेरा सिख, अनादनाद उसके अंदर प्रगट हो जाए। अनादनाद तो दो गल्लां प्रगट होणगियां पहुंचे हुए मनुख के अंदर। एक तो उसके अंदर प्रकाश होवेगा, एक उसके अंदर अनादनाद वजेगा। ये दो गल्लां की पहचान है। धर्मी दिस पैना एक श्रृंगार है, धर्मी हो जाना एक साधना। इतनी मैं अर्ज कर दें। श्रृंगार करके कोई भी धर्मी दिस सकता है, पर साधना करके धर्मी हो जाना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। बच्चियां की खेल नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दें। ते लफ्ज मैं फिर दोहरा दियां, 4 अरब की आबादी दे विच जमीन के उत्ते मनुखां की अज 4 अरब के करीब आबादी है। तुसी 2 हत्थां दी उंगलियां ते उन्हां मनुखां नूं गिण सकदे हो जिन्हां दे अंदर नूर प्रगट होया है, जिन्हां दे अंदर अनहद-नाद प्रगट होया। बाकी ते गल्लां ही ने, सिर्फ विचारां ही ने, मनुख की पहुंच नहीं। कारण मनुख साधना नहीं कर रहा। तुसी आखोगे फिर साधना की है? गुरु घर दे जप ते जाप। जप ते जाप किवें करिए? तो गुरु नानक की एक पंक्ति मैं थोड़े सामने रखा। धुन में ध्यान, ध्यान में जाने गुरुमुख अकथ कहानी। धुन में ध्यान, वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापनी धुन दे ध्यान जोड़ना बड़ी औखी गल है। करके देखोगे बड़ी औखी गल है। यह जी कथा है ना, 1 घंटा 2 घंटा मैं कर सकता, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। कीर्तन कोई 4 घंटे भी कर सकता, सारी रात भी कर सकता, कोई वड्डी गल नहीं। इनू मैं कोई बहुत वड्डी गल नहीं मनता। ड्यूटी है अखंड पाठ की, 8-8 घंटे भी कई कर लेंगे। मैं हिंदुस्तान में देखे एक पाठी 4-4 ड्यूटियां भी दे देंगे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। इत्थे तुसी 2-3 घंटे बैठ सकते हो, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। पर वाहिगुरु वाहिगुरु की कोई धुन अलापे, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़े, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट आ जी गल मैं कह रहा दावे नाल कह रहा, 1 मिनट भी नहीं कर सकोगे। 1 मिनट तो शायद मैं 1 मिनट ज्यादा कह रहा, आधा मिनट भी नहीं कर सकोगे। करके देखना नहीं तो साहब कहने अगर कोई 1 सेकंड वास्ते भी कर लवे, 1 सेकंड वास्ते गल बन जाएगी। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच नार। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक कहते 1 सेकंड में, 1 सेकंड दे तू जाप करते गल बन जाएगी। 1 सेकंड ते तुसी आखोगे 1 सेकंड किधरे अत कथनी ते नहीं। खिमा करनी 7 बचन वो होंगे ने जो वधा के नहीं बयान किए जाते, घटा के नहीं बयान किए जाते। उन्होंने कहते हैं 7 बचन। जिहड़ी गल वधा के बयान की जाए उन्होंने कहते हैं अति उपमा अलंकार, वधा के बयान कर दी गई है। तो जिहड़ी गल घटा के बयान कर दी जाए वह निंदा है। जिहड़े सतपुरुष ने इन्ना वधा के गल कर दें ना घटा के गल कर दें, जितनी गल है उतनी बयान करते हैं। इस वास्ते सतपुरुषों के बचन सत्य बचन होंगे, वो ना वधा के गल आखे। कभी लोग कई दफा गल वधा के कह देंगे, घटा के भी कह देंगे, पर सतपुरखों के जिहड़े बचन होंगे ने वो कल्पना के उत्ते नहीं खड़े, सच्चाई के उत्ते खड़े होंगे। गल वधा के नहीं कहते, गल घटा के नहीं कहते, गल जितनी है उतनी कहते। 1 छिन दे गल बन जाएगी। पर हुण 1 छिन केड़ा कि वाहिगुरु वाहिगुरु की बंदा धुन अलापे, उहदे च ध्यान जोड़े। हुण तुसीं करके वेखना, ध्यान कदी सज्जे जांदा कदी खब्बे जांदा, जुड़दा ही नहीं। कारण की है? गुरु अमरदास जी महाराज का फरमान है कि बाहर जाण नूं परिपूर्ण परमात्मा ने 9 दरवाजे सानू दिते ने, जिहड़े 9 इंद्र ना 9 दरवाजे। ते अंदर असी जा सकीए, अनहद नाद सुन सकीए, प्रकाश वेख सकीए, इको ही दरवाजा है। उस दरवाजे नूं आख्या गया है 10वां दरवाजा, 10म द्वार करके गुरमत विच कहा गया। 10म द्वार, द्वार कहने दरवाजे, और इसका बड़ा गुरबाणी च जिक्र है। 9 दरवाज नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। बई जिहड़े 9 दरवाजे ने
रस इत्थे भी है पर बड़ा फिक्का। अखां दा रस, जबान दा रस, कन्नां दा रस, खलड़ी दा रस, नासका दा रस। मनुख नूं रस चाहिए। जिथे रस नहीं मिलेगा बंदे नूं नींद आ जाएगी, सौ जाएगा, बंदा बोर हो जाएगा, उठ जाएगा, परेशान बेचैन हो जाएगा। कोई रस चाहिए। इन्हां 9 दरवाजियां विचों किसी न किसी दरवाजे का रस चाहिए बंदे। अगर नहीं, बंदा नहीं बैठ सकेगा उस महफिल विच जिथे रस नहीं है। तो हुण मैं अर्ज करा, ये जिहड़ी गुरबाणी है इन्हां 9 दरवाजियां का रस है ही नहीं है। तुसीं जबान नाल चख के नहीं कह सकते गुरबाणी खट्टी है, मिठी है, सलूणी है, नमकीन है, किहो जिहां दी है। नहीं, ये जबान का रस नहीं है। ये अखां का रस भी नहीं, भी तुसीं वेख लो। ये कन्नां का रस भी नहीं है। ये खलड़ी का रस भी नहीं, ये नासका का रस भी नहीं, ये इन्हां 9 दरवाजियां का रस नहीं है। ये 10वें द्वार का रस है। 9 दरवाज नवें दर फीके, रस अमृत 10वें चूजे। अमृतमयी रस 10वें द्वार है। इन्हां 9 दरवाजियां ते नहीं। ते हुण भगत कबीर कहंदे ने, 9 घर देख जो भूली कामण, वस्त अनूप न पाई। कहो कबीर नवें घर मूसे, 10वें तत्त समाई। ये जिहड़ी कामण, ये जो जीव आत्मा है, ये जो मनुख का ध्यान है, मनुख की चेतना है, ये 9 दरवाजियां च भटक के रह जाती है। और ये 9 दरवाजे एक भूल भुलैया ने। दिल्ली ते लखनऊ दे भूल भुलैया बनी हुई है। उन्होंने कहते हैं भूल भुलैया। एक दफा बंदा अंदर चला जाए, इंटर हो जाए, फिर बाहर निकलना होगा। जिन्ने चिर तक कोई गाइड ना आवे नहीं निकल सकेगा। बंदा फस जाता है, इधरों निकलना, इधरों निकलना। जितना वो निकलने की कोशिश करता उतना ही अंदर फस जाता, निकलता ही नहीं। फिर जिहड़े उत्थे दे रहने वाले मुंतजिम ने, उन्होंने इंतजाम कर रखे कि जिहड़ा बंदा बिल्कुल ही ना निकल सके उन्होंने फिर कढो, क्योंकि अंदर मत्था मारदियां मारदियां थक जाएगा, परेशान होगा। तो कबीर कहते हैं ये जिहड़े 9 दरवाजे ने ना, ये तो भूल भुलैया ने। बंदा इन्हां च ही भटक के रह जाता सारी जिंदगी। अखां दा रस माण रहा है, उगता गया। जबान का रस हुण माणदा पिया। जबान के रस तो उगताया है, कन्नां दे रस ते चला गया। कन्नां दे रस तो बेचैन होया, हुण खलड़ी का रस चाहिए, स्पर्शता का। ते खलड़ी के रस तो बेचैन होया, नासका का रस चाहिए। नासका के रस तो औखा होया, फिर अखां का रस चाहिए, फिर कन्नां का रस चाहिए। इसे च भुलिया रहता। बुलावड़े भुली भुल भुल पछो ताणी। मुड़ मुड़ के भुलता है, बार बार भुलता है। एक गलती साडे कोल एक दफा नहीं हुई, बार बार हुई है। कहने जो एक गलती सिर्फ एक दफा करे वो मनुख है। जो एक गलती दोबारा करे मनुखता तो थल्ले है, पशु है। ते जो एक गलती नूं बार बार करी जाए ये तो शैतान है, कोरा शैतान है, दैंत है। ते गुस्ताखी माफ संसार दे मनुख विरले ने। जो गलती करे ही ना उन्होंने कहते देवता है, फरिश्ता है, भुल करता ही नहीं। भुल कीती है सिर्फ एक दफा, मनुख है, मनुख का सुभाव है, भुलेगा। माटी का क्या धोखे स्वामी मानस की गति, मनुख भुलेगा। इंसान जिहड़ा लफ्ज है ये अरबी का है, तो मैं ये अखरी अर्थ पढ़े ने अरबी शब्दकोश दे। ये अखरी अर्थ ने भुलां करन वाला, गलतियां करन वाला। इंसान के अखरी अर्थ ही बनते और कुछ नहीं। पर एक गलती एक दफा होवे ये इंसानी स्वभाव है, ये मनुखी फितरत है। क्योंकि मनुख सीखता ही गलतियां तो, मनुख सीखता ही भुलना तो है, उंज नहीं सीख सकता। इतनी भी मैरिज करते हैं। सीधा ही जो सीख जाए, बिना भुल कीते ही सीख जाए, वो तो फरिश्ता है, वो तो देवता है। तो जो भुलां तो सीखे वो मनुख है, तो जो भुलां तो भी ना सीखे वो पशु है। तो भुलां करना ही जिसका स्वभाव हो जाए तो शैतान है, वो तो दैंत है। वो तो संसार वास्ते बड़ा खतरनाक होगा, अपने वास्ते भी बड़ा खतरनाक होगा, जगत वास्ते भी बड़ा खतरनाक होगा। तो भगत कबीर कहते हैं भुलावड़े भुली। बार बार बंदा इन्हां 9 इंद्रियां च भटक रहा है, भुल रहा है। 9 घर देख जो भूली कामण, वस्त अनूप ना पाई। वो जिहड़ी अनुपम वस्तु है इन्हां 9 दरवाजियां ते नहीं है, 10वें ते है। अनुपम वस्तु, परम वस्तु की एक नूर, एक अनाहद नाद। ऐसा नाद जिन्हों सुनदियां ही बंदा बिस्माद हो जाए। ऐसा नूर जिन्हों वेखदियां ही तबक रोशन हो जान सारे। वो एक प्रकाश है
ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਦ ਹੈ ਪਰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਰ ਫੀਕੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ 10ਵੇਂ ਚੁਈਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ ਗੁਪਤ ਹੈ, 9 ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਕਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਲੜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੈ। 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, 10ਵਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਤੇ 10ਵਾਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਪਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਪਿਆ। ਇਸੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦੋਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕੌਣ? ਰਾਗੀ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸੋਂ ਕਈਆਂ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਧੁਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਕੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਸੁਰਾਖ ਕੀਤੇ, ਹੋਂਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਉਸ ਬਾਂਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਰ ਦੇ 'ਚ, ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਂਸੁਰੀ। ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਂਸ ਦੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਮੜੀਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੇ ਬਿਨ ਸਾਵਨ ਗਨ ਹਰ ਗਾਜੇ ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਢੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਦ ਕਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਮਰੂ ਵਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਸਤੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਣਾ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਧੁਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਸਿਰਫ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਮਰਦਾਨੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਭੈਰਵੀ ਪੈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਪੈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਆਸਾ ਪੈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੋਰਠ ਪੈ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਜੈਤਸੀ ਪੈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਰਾਗ, ਵਕਤ ਦੀ ਰਾਗਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਉਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪ੍ਰੀ ਸੌ ਕਈਆਂ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੀ ਧੁਨ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗ, ਬੇਅੰਤ ਰਾਗ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਗ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਰੂਣੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣੇ। ਵਰਨਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਰੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ। ਡਮਰੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਮੁਰਲੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ
नारद ने मरदंग ਨੂੰ जन्म दिता दक्षिणी भारत के संतां ने और कहते ने रबाब की महिमा जिहड़ी हिंदुस्तान दे प्रचलित की थी गुरु नानक ने सरंदे ਨੂੰ जन्म दिता गुरु अर्जन देव जी ने सत्ते ब्रह्मंडे ने कीर्तन करने तो इनकार कर दिता ते साहब आप सरंदा लैके बैठ गए कीर्तन करन गुरु अर्जन देव जी बिलावल राग की धुन पे आलापदे ने हुण पुछिए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो पातशाह ये बिलावल गावना तुसीं कित्थों सिखे किस कोल सिखे किहड़े रागी ने तुहानूं सिखाया किहड़े संगीतकार कोलों सिखे नहीं संगीत अंदरों पे फुटता है राग अंदरों पे फुटता है वक्त का राग गुरु अर्जन देव जी महाराज आप पे आलापदे ने बाबा दीप सिंह शहीद जिथे सवा मन के बस्तर तन दे सजा के रखते सन उत्थे नाल सरंदा भी रखते सन मैदान जंग च लड़दियां लड़दियां जिथे अमृत वेला हो जाए शस्त्रां नूं एक पासे रख के सरंदे की सुर दे विच अपनी आत्मा की सुर जोड़ते सन रब नाल जुड़ जाते सन दरअसल रब नाल जिहड़ा बंदा जुड़ेगा उहदे अंदरों संगीत जरूर प्रगट होगा साडे देश का महाकवि हिंदी ते बंगला का टैगोर कहा करता सी जिन्हों फुल नहीं चंगे लगते जिन्हों संगीत नहीं चंगा लगता जिन्हों कविता नहीं चंगी लगती जिन्हों मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते उस बंदे का जिंदा रहना संसार वास्ते नुकसानदा होगा हानिकारक होगा क्योंकि बंदा पत्थर होगा ये बंदा नहीं होगा ये तो कठोर होगा ये बंदा नहीं होगा ये तो दैंत होगा इनू कविता नहीं चंगी लगती इनू संगीत नहीं चंगा लगता इनू फुल नहीं चंगे लगते इनू मासूम बच्चे नहीं चंगे लगते स्पष्ट गल हो गई कि इसका हिरदा बहुत कठोर है बहुत कठोर है बड़ा कठोर है रब नाल जुड़े हुए मनुख का हिरदा कोमल हो जाता है तो मैं अर्ज करा ये जिहड़ा संगीत है ये सतपुरुषों की देन है महापुरुषों की देन है उन्होंने जगत में प्रगट किया बाहरों फिर महापुरुषों की नकल चल पैंदी फिर साधना की तो अनहद नाद तक पहुंचने वास्ते नाद का आसरा लेना वाहिगुरु वाहिगुरु की धुन अलापनी है ये ध्यान जोड़ना है कथा क्यों सुननी है कीर्तन क्यों सुनना है गुरुद्वारे क्यों आना है असी जाप कर सके इतनी मेहनत करते गुरु सतगुर का जो सिख आखा है सो भल के उठ हर नाम है ये जोड़ा नितनेम करना है बाकी कुछ करना है तो बाद करना है फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे बाद पहले जाप पहले नाम का चिंतन सिख जगत में नहीं रहा इस वास्ते अभ्यासी पैदा होने बंद हो गए हुण ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन कोई नहीं अज तो 40-50 साल पिछे जाइए बड़े ब्रह्म ज्ञानी सन साडे विच बहुत अच्छे बाबा निधान सिंह सी बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाले हैगे सन बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले हैगे सन और अकाली कौर सिंह जी कश्मीर वाले हैगे सन संत भगत सिंह डिस्ट्रिक्ट बन्नू वाले हैगे सन बाबा करम सिंह होती मरधान वाले हैगे सन अज तुसी चिराग लैके ढूंढण वास्ते जाओ ब्रह्म ज्ञानी की कोई दर्शन नहीं किधरे भी नहीं मैं थोड़ा मायूस नहीं करता निराश नहीं करता हो सकता मेरी खोज गलत हो पर मैं भटक भटक के देखे अभ्यासी कोई नहीं कारण अभ्यास ही नहीं रहा जाप ही नहीं रहा हर घर में एक रसोई तो बनी हुई है ना किचन बने हुआ हर घर में जिथे असी भोजन बनाते हैं हर घर में 4-5 फुट 3 फुट थां ऐसी भी होनी चाहिए जिथे बैठ के बंदा जाप कर सके चाहिए वह भी एक रसोई है उत्थे आत्मा का भोजन बनाना है शरीर का भोजन बन रहा है जिस किचन दे एक ऐसा किचन भी चाहिए एक ऐसी रसोई भी चाहिए जिथे रूह की खुराक बनाई जा सके आत्मा की खुराक बनाई जा सके उत्थे बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हो और रोज अगर उत्थे जाप होवे वो जगह इतनी पवित्र हो जाएगी वो जगह इतनी महान हो जाएगी उतों की वाइब्रेशन ऐसी सोहनी बनेगी अगर ठग ते शैतान भी उत्थे आके बैठे उसकी रसना तो वाहिगुरु निकल जाएगा लाजमी निकलेगा उस जगह का असर होगा इनू कहते अस्थान भेद जगह का असर हुण ये जाप नहीं तो ये जाप ना हो तो सब कुछ तुसी करी जाओ क्षमा करनी ये कोई बहुता लाभकारी नहीं होता ये उत्ते एक मैं दलील देना होना शायद थोड़े वास्ते काबिल कबूल हो गए एक किसान ने जमींदार ने जमीन विच हल चलाया खाद भी पाई पानी भी दिता जमीन विच बत्तर भी सी चारों पासे वाड़ भी बना ली रखवाली करने वास्ते बैठ भी गया 15-20 दिन लंघ गए जमीन विचों कुछ जमिया नहीं
कुछ पैदा नहीं होया। आखिर किसी सियाणे नूं बुला लिया तो कहंदा कुछ पैदा ही नहीं होया, कुछ जमिया ही नहीं। सियाणा कहंदा तू हल चलाया सी, कहंदा 3 दफा चलाया, 1 दफा तो जमीन विच वत्तर है सी, कहंदा मैं पानी दिता। तू खाद पाई है, कहंदा बहुत वधिया खाद मैं पाई है। सुहागा फेरिया सी, कहंदा हाँ मैं सुहागा भी फेरिया। अच्छा ये दस तू बीज केड़ा पाया, कहंदा बीज तो मैं कोई नहीं पाया। जे तू बीज ही नहीं पाया तो हल चलाया व्यर्थ चला गया, खाद पाई व्यर्थ चली गई, पानी दिता होया व्यर्थ चला गया, सुहागा फेरे होया व्यर्थ चला गया। क्षमा करनी, कथा कीर्तन सुनना, गुरुद्वारे आवना, दान पुन करना, लंगर की सेवा करनी, ये इंज है जिवें हल चलाना है, खाद पानी है, सुहागा फेरना है, पानी देना है। पर अंमृत वेले उठ के वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप करना, उहदे च ध्यान जोड़ना है, बीज पाना तो बीज ही कोई नहीं, पल्ले की है किसी के पल्ले कुछ नहीं। जिहड़े 40-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे हैं गुस्ताखी माफ, उन्होंने पल्ले भी कुछ नहीं। मैं देखिया है गुरुद्वारे ना आने वाला बंदा जो क्रोधी है तो गुरुद्वारे आने वाला भी क्रोधी है। गुरुद्वारे ना आने वाला बंदा ठग है, गुस्ताखी माफ गुरुद्वारे आने वाला भी कोई बहुता ईमानदार नहीं। गुरुद्वारे ना आने वाला बंदा झूठा है पर गुरुद्वारे आने वाला भी झूठा है। गुरुद्वारे जो नहीं आ रहा वितकरियां दे भरिया होया है और तरह तरह के हंकार नाल भरिया होया है, पर जिहड़ा गुरुद्वारे आ रहा है वह भी हंकार दे नाल भरिया है, वह भी वितकरियां नाल भरिया होया है। गल की है आने वाले ते ना आने वाले च कोई बहुता फर्क नहीं दिखाई देता। इतनी मैं अर्ज करते कभी बगौर मुताला करोगे कोई बहुता फर्क नहीं दिखाई देता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक चलदा ही नहीं पिया तो एक चल के किधरे पहुंचे, बस इतनी गल है। एक चलदा ते पिया पर किधरे पहुंचे नहीं, तो एक चलदा ही नहीं पिया, दोवें अपनी थां ते खड़े, दोवें भटके, दोवें ठिकाने ते नहीं पहुंचे, दोवें कोल रस नहीं है। तो मैं अर्ज करा जाप जिहड़ा करना है वाहिगुरू वाहिगुरू की धुन अलापनी, ये 10वें द्वार तक पहुंचने का जरिया यही है, उस अनहद नाद नूं सुनन दा, उस परम प्रकाश नूं वेखण दा। हुण जाना ते अंदर है ना, तो फिर साधना भी कोई अंदरों चाहिए, बाहरों नहीं। शब्द अंदरों प्रगट करांगे ना वाहिगुरू वाहिगुरू। बाहर जी तुसीं मूर्ति च ध्यान जोड़िया, बदकिस्मती है साडे देश की कि साडे विच जिहड़े उच्च कोटि के संत कहलांदे ने गुरबाणी ग्रैमर तो बिल्कुल अनजान ने, गुरबाणी के सिद्धांत तो बिल्कुल ना वाकिफ ने, और जिहड़े गुरबाणी के सिद्धांत तो वाकिफ ने वो बिल्कुल जाप नहीं करते। ये कमी है, बहुत बहुत वड्डी कमी। वो कई जाते हैं इस तरह के साध भी सामने तस्वीर रखो, वो ध्यान जोड़ो, तो पुरख है तो सनातन मत है, फिर गुरमत की लोड़ पैगी, गुरु नानक की लोड़ पैगी। जिथे साहिबा ने कह दिता है कि उत्ते चक्र चैन तो न्यारा है, वरन जात तो न्यारा, उसकी की मूर्ति बनाई है, उसकी की तस्वीर बनाई है, किथे ध्यान जोड़ो। तो जब गुरबाणी ये आख देवे ध्यान धरो तहे को मन में जहे को अमतोज सवे जग चायो, धुन में ध्यान ध्यान में जाने गुरमुख अकथ कहानी, शब्द ते ये पे कहने तू कही जाना तस्वीर दे ध्यान जो। तेरी गल मनी कि शब्द की गल मनी, तेरी गल मनी कि गुरु नानक की गल मनी। जिहड़े गुरु नानक नाल जुड़ते हैं उत्ते गुरु नानक की गल सुनते हैं मनते हैं, जिहड़े व्यक्तियों नाल जुड़ते हैं फंबल भूसियां च पै रहिंदे। इतनी महरज करते हैं। धुन में ध्यान, धुन दे विच ध्यान जोड़ना है, और धुन अपने अंदरों अलापनी है, और वो नवनिध नाम अनहद नाद ते प्रकाश भी अंदर है, बाहर ना लभना। साहब कहते बाहर टोले सो भरम बुलाए, जिहड़ा बाहर टोलन की कोशिश करेगा वो संसार का रस है, 9 इंद्रियां का रस है, ते 10वें द्वार का रस ते अंदर है। सुरत नूं अंतर्मुखी करो, बाहरमुखी नहीं, और सारियां दे अंदर वो प्रभु का नाम है। नाम की एक प्रकाश, नाम की एक अनहद नाद, नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम, देही विच विश्राम। समुची धरती दे थल्ले पानी है, समुची धरती दे थल्ले, पर खुदाई करिए ते पानी निकलदा है। किधरे 2 फुट खोतीए ते पानी निकलदा है, किधरे 4 फुट खुदाई करिए पानी निकलदा है, किधरे 8 फुट खुदाई करिए पानी निकलदा है, किधरे 100 फुट खोदना पैंदा है। राजस्थान का इलाका हिंदुस्तान विच ऐसा जिथे 400 फुट खुदाई करो जैसलमेर ते पानी निकलदा उंज नहीं निकलदा, पर दिल्ली के ऐसे इलाके में तुसीं 2 फुट खुदाई करो पानी निकल आंदा, किधरे 4 फुट खुदो पंजाब विच पानी निकल आंदा।
8 फुट खोदो तो पानी निकल आता है, पर किधरे 400 फुट खोदो तो पानी निकलना आता है। पानी समुची जमीन के थले किधरे 2 फुट खोदना पैंदा है, किधरे 200 फुट खोदना पैंदा है। नौ नित नाम सारियां दे अंदर है, प्रभु की जोत सारियां दे अंदर है। किधरे थोड़ा जाप करिए तो गल बन जाती है, किधरे बहुता जाप करना, किधरे विकारां की परत बहुती पई है, विकारां के पत्थर बहुते पैने, बहुते हटाने पैंदे, बहुता समा लग जाता है। तो कईयां नूं बहुता समा नहीं लगता, 2 दिन अभ्यास किया, तीसरे दिन नाम जल प्रगट हो जाता है। नौ नित अमृत प्रभ का नाम देही में इसका विश्राम। तो हुण मुख्तसर मैं समाप्ति करा। गुरु अमरदास जी महाराज कहते 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखा। ये 9 दरवाजे ते प्रगट ने, तो वो जो 10वां द्वार है गुप्त है, ते 9 नित नाम वो 10वें द्वार पे है, वो परम प्रकाश 10वें द्वार पे है, वो अनहद नाद भी 10वें द्वार पे है। ते हुण किस तरह पहुंचीए उत्थे तक, किस तरह पहुंचीए? कुछ युक्तियां ते उगतियां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च मैं तुहाडे सामने रखा। कबीर कहंदा मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे। कहंदा मैं इन्हां 9 दरवाजियां नूं बंद कर छड़िया, 10वां खुल गए ते अनहद नाद वज पे। 9 दरवाजे बंद कर छड़े ने, यह मतलब नहीं कि कन्नां दे रुई दे दी है, अखां बंद कर छड़ियां, बोलना ही बंद मौनी हो गया, ऐसी गल नहीं। कबीर कह रहे ने मेरी जबान बोलती है, गलत नहीं बोलती, कन सुनते ने, गलत नहीं सुनते, अखां वेखदियां ने, गलत नहीं वेखदियां, खलड़ी स्पर्श करती है, गलत नहीं करती, नासका सूंघदी है, गलत नहीं सूंघदी। मैं गलत वेखण वास्ते अखां बंद कर लईआं, गलत सुनन वास्ते कन बंद कर ले, गलत बोलने वास्ते रसना बंद कर ले, गल खत्म, दरवाजे बंद कर देते। मूंह दे लिए दरवाजे, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं बोलेगा, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं वेखेगा, बंदा सुचेत होवे गलत नहीं सुनेगा। अचेतपणे च सारा अनर्थ होंदा साडे कोल, अचेतपणे च। तो कबीर कहंदे मूंद लिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे, अनहद नाद वज पे 10वें द्वार पे। हुण पहली जिहड़ी झलक मिलती है वो अनहद नाद की मिलती है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी यही जिक्र किया है, जगमग जोत अनहद धुन गाज है। भाई साहब कहते हैं हे प्रभु मैं अनहद नाद सुन रहा तेरे दरवाजे पे, नौबत वज रही है। तो 9 दरवाजे बंद कर छड़े, भाव इन्हां दा मैं गलत इस्तेमाल नहीं करता। हुण कबीर कहते हैं मैं 10वें द्वार ते पहुंच गया, 10वें द्वार दे बाहर अनहद नाद वज रहा है ते 10वां द्वार बंद है। द्वार तक पहुंचते हैं अनहद नाद वज पैंदा है। किसी बंदे की पहचान यही है कि यह बंदा 10वें द्वार तक पहुंच गया, बस इतनी पहचान है, वह अनहद नाद सुनेगा। तो 10वां द्वार खुल गया है तो उन्होंने प्रकाश की झलक दिखाई देगी, वो अंदर प्रकाश हो गया। ये 2 गल्लां ने। कबीर जिस वक्त 10वें द्वार तक पहुंचे ने ते अनहद नाद नूं सुनिया, वो हुण द्वार दे खुलण की प्रार्थना कर रहे हैं। दरमां दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु दरवाजा खोल, मैं तेरे दर्शन करा। तो हुण लकड़ का दरवाजा होवे तो खोल लेंगे, आप तोड़ भी लवांगे, खोलना की तोड़ भी लवांगे, जे नहीं खुलेगा तो नहीं। ये 10वें द्वार का जिक्र है। मस्जिद के बूहे खुला लेना आसान है, गुरुद्वारे के बूहे खुला लेना आसान है, मंदिर के दरवाजे तोड़ के अंदर चले जाना आसान है, पर खिमा करना अपना 10वां द्वार खोलना बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल। दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वार। हे प्रभु हुण खोल के वार, दिखा ले दर्शन ऐसी बख्श करिए। हे प्रभु ए दरवाजे खोल, अपना दीदार दे। दरमा दे ठांडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल के वाड़। मैं तेरे दर तक पहुंच गया, सिमरन करदियां करदियां, अभ्यास करदियां करदियां, जाप करदियां करदियां तेरे दर तक पहुंच गया। ते दर दी की पहचान है? अनहद नाद सुनाई देगा। अनहद नाद की है? वाजे नाद अनेक असंख्या केते, वामन हारे केते, राग परीसों कईयन केते, गावण हारे। अणगिणत राग रागणियां, अणगिणत साजां दी आवाज उत्थे सुनाई देगी। तिथे नाद विनोद कोड आनंद, बड़ा ही परम आनंद, बड़ा ही परम रस है, करोड़ों तरह का संगीत है। पर भगत इत्थे इसते नहीं तृप्त होंदा। कहंदा प्रभु तेनों सुन ते लिया,
ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇੜ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ। ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਬਿਨ ਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਥ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮ ਨੂਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਇਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 6 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5 ਮਿੰਟ। 5 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 5 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਥਾ ਮੈਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਲਸਫੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਧੁਨ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਿਉਂ ਧੁਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਧੁਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੇ ਨਾਦ, ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਖੋਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਉਸ ਪਰਮ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਉਂ ਵਾਕ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਬੇਚੈਨ ਬੈਠੇਗਾ, ਔਖਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਵਕਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਰ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੌਕੇ ਪੈ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਬਕ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵੇਗਾ? ਜਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਨ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10ਮ ਦੁਆਰ 9 ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ